So last class we were discussing heap sort. We just started about heap data structure last class. So heap is a almost complete binary tree, and there are two types of properties that is satisfied in the heap. The first one is maxi property. The second is mean heap property. So the almost complete, it must be almost complete binary tree. Okay, to be a heap data structure, it must be almost complete binary tree, and it must follow one of these two properties, either this property, maxi property, or min heap property. So maxi property means the value at the root node is the largest value of all other node values. Okay, and also the value of any node is greater than its child node's value. And the meaning property says that the value at the root node is smallest among all other nodes of the tree, and you take any node value that is less than its child node values. So this is meaning property. So this is example of a maxi. You can see all the nodes value greater than its children. So we can see this node. This is a subtree, and here this node value is greater than its children. You can see 5 is greater than 1 and 5 is greater than 3. Similarly, you can see 4 is greater than 2. And see here 9 is greater than 5 and 4. Okay. And also 9 is the largest value at the root node. Okay. So this is maxi. Similarly, main, if you can see this one. So the value at the root node is smallest among all other node values. Okay. And also you take any node value that is smaller than the values at its child nodes. Okay, you can see anyway. So this is mean. Then heap operations. So these are the heap operations we discussed in the last class. First operation is heapify. Then second is insert operation, insert element into the heap. Then next is delete element from the heap, and then extract max or extract min operation. So first operation, that is heapify. So heapify method rearranges the elements of an array where the left and the right subtree of ith element obeys the heap property. So this heapify method is used to maintain the heap property, okay, either maxi property or min heap property. It is basically used to create a min heap or max heap. For example, suppose we have this array, and these are the array elements 3, 9, 2, 1, 4, and 5. And these are the array index. And if you construct a binary tree using these elements, so it will be like this. So heapify is used to maintain the heap property. That means uh, it is used to maintain either main heap property or max heap property. Suppose you want to maintain the max heap property in this tree, okay, and in this tree you can see uh, this node. You take this node too. We know that in max heap, the value uh, at any node is greater than its child node's value. So this node, child node, is this one. Okay, this one, and its value is 5, and this node value is 2. So this node value is not greater than this node value, but according to the maxi property, it should be greater than this. So we have to heapify. We have to use the heapify operation here. So that operation will be applied on this node too. Okay. So after you apply heapify here, then the maxi property will be satisfied. I mean, when you apply maxi property, the largest value which is present in this subtree, okay, that means here in the left subtree, left child and right child, or the root node. So
whichever is the largest value, that will be inserted here. Okay, so it is done actually by swapping. So the value of the child node, which is the largest value, that is swapped with this node value. Okay, so here this value will be swapped. Okay, so 2 will come here and 5 will come here. Similarly, you can apply this CP5 process, CP5 method to any other node also. You can apply here also, because here this is also not satisfying, because here 3 is there, and it's the two child's value are greater than this. You can see 9 is here, 9 is greater than 3, so this is not satisfying maxi property. So we can also apply this maxi property as the CP5 method at this node also. Okay, so the CP5 method is applied on the nodes of the binary tree to maintain the maxi property or minim property. Okay, is that clear, students? Okay, so this is the CP5 method. This is the algorithm for AP5 method. So AP5 array size n. So we actually pass the array to this method AP5 array and size of the array, and the node index we are passing. So मतलब जिस नोड को AP5 मेथड अप्लाई करना है उसी नोड का इंडेक्स यहाँ पास करना है, ठीक है, और साइज क्या है, आरे का साइज है, ठीक है। सो ये ट्री को आरे रिप्रेजेंटेशन करके रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका साइज यहाँ पर क्या है, साइज। ओके, सो कैसे एपीफाई अप्लाई करेंगे? सपोज वी वांट टू अप्लाई एपीफाई टू make it maxib. Okay, so we can use a variable largest. Okay, set I as the largest. Okay, then left child of I equals to 2i plus 1. We know this formula. If a node is having index I, then its left child index is 2i plus 1 and right child index is 2i plus 2. Okay, now we are comparing if left child is greater than array largest. If left child is value is greater than array largest. Okay, array stores all these values. Okay, and if the largest value, if this left child is greater than the largest value, okay, in the array, okay, which is in the left child or right child, okay, then you, yes, we are actually comparing the first one, left child we are comparing. So if the left child value is greater than this array, okay, because we are starting from the uh, node I itself. Okay, so this I index value is compared with the left child. Okay, and whichever is greater, that is assigned this largest. Okay, similarly we are comparing if right child is greater than array largest, then set a right child index as largest. So the largest value index is assigned as largest. Okay, so then what to do? Just swap the array I. So we are actually applying the CP5 method to the index I here. Suppose we are applying here 2. So we have to swap this 2 with this. Okay, suppose this is the largest value. So we will swap with this. This value will come here and this value will come here. Okay, so swap here are, sorry, array 2, I value is now 2. Okay, and array largest, because this value is largest. Okay, so this way we can swap, and after that it will become as the maximum. Okay, and you can see after swapping we'll get this. So 5 will come here and 2 will come. So this is CP5. Okay, so remember here that the maximum value will come to here. Okay, the next is build maxi. So build maxi, it builds a maxi from the binary tree. Okay, so NAPI5 method is used to apply at any particular node. But this build maxi means it will apply the CP5 method to all the nodes of the binary tree to make this whole tree as the maxi. Okay, we apply CP5 method to a particular node, and if you want to create a max heap, then you have to apply that 55 method to all the nodes. Okay,
in the binary tree so that it will become as the maxi. Okay, and where you will apply, you will start from the last non-leaf nodes. Okay, to make the binary tree as the maxi. So see here, this is a binary tree. Okay, and we want to make this maxi. Okay, now tell me, is this a maxi? Tell me now, is this a maxi? No, sir. No, it is not a maxi because see, the value, this value is less than these two child values. Okay, similarly, this value is less than these two child values. So it is not a maxi. So we have to convert this to maxi. How will convert? We will apply the hippify method. Okay, to all the nodes in the tree. Okay, and all the nodes means we'll actually see these leaf nodes are already maxi because they don't have the child nodes. Okay, so we'll start from the last non-leaf nodes. Okay, so which one is the last non-leaf node? Tell me, is the value of last non-leaf node now in this tree? Leaf node are already maxics because they don't have child nodes, so with whom you will compare? Okay, they are already, see, this is 7 here, so it doesn't have any child nodes, so with whom you will compare if you consider this as the node? Similarly, this one already maxic, this one already maxic, this one, but you see here this one, this 3 node is this satisfying maxi property? Node 3, is this node 3, this one satisfy maxi property? Hmm? This node 3, No, sir. no. So, and this is also the last non-leaf node. Yes or no? This is the last non-leaf node. See, we are starting from the root node. This is index 0, then index 1, then index 2. Like this we are going. Then index 4, 5, 6, 7, like this. Yes or no? If you are representing this tree in the using array, then this root node is index is 0, then this is 1, this is 2, 3, 4, 5, 6, like this. Yes or no? Now, this is the last non-leaf node. Okay, all these are leaf nodes. Okay, and this is the last non-leaf node. This is not the leaf node. This is last non-leaf node. Okay, इसके बाद और कोई नॉन लीफ नोड है क्या? देखो, 0 1 2, 2 के बाद तो 3 आ गए यहाँ पर, लेकिन 3 इज ए लीफ नोड. So which is the last? What is the index of the last non-leaf node? Tell me here in this case. What is the index of last non-leaf node? कितना है? हम्म, इसको अगर आरए में रिप्रेजेंट करोगे तो ये रूट नोड का इंडेक्स कितना होगा? 0 होगा ना, ठीक है. और इस नोड का इंडेक्स कितना है? 1. इसका इंडेक्स कितना है? 2. इसका नोड इंडेक्स कितना है? 3. इसका 4, इसका 5, इसका 6. ठीक है, टोटल 7 एलिमेंट्स है, 3 7. तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट करके 6 तक आ गया. ठीक है ना. तो इसमें ये नोड, this node is not a leaf node, this node is also not a leaf node, this also is not a leaf node, but this is a leaf node, this is a leaf node, this is a leaf node, this is a leaf node. Okay, and this node index is, what's the index of this node? Tell me. Sir, 2. 2. Yes, the index of this node is 2, and this is the last non-leaf node. Yes or no? This is the last non-leaf node. Yes or no? Yes, sir. ओके, बिकॉज इसके बाद वाला जो इंडेक्स है 4, 4 यहाँ पर इसका है, सॉरी 3, 3 यहाँ पर है. ये हो गया लीफ नोड हो गया, इसका कोई और ये नहीं. दिस इज लीफ नोड. ओके, इसके पहले वाला कौन सा है? 2, ये वाला. तो 2 जो इंडेक्स में जो वैल्यू है, ये वाला तुम्हारा हो गया नॉन लीफ नोड लास्ट. इसके बाद और नॉन लीफ नोड नहीं, ये लास्ट है. ठीक है ना. तो हम जब बिल्ड मैक्सिप कर रहे हैं, बिल्ड मैक्सिप में क्या होता है कि इसको अप्लाई करने के बाद ये पूरा का पूरा ट्री में तुम किसी भी नोड को ले लो, वो सभी नोड अपना सेटिस्फाई करेंगे मैक्सिप का प्रॉपर्टी. बिल्ड मैक्सिप प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद सभी नोड, जितने भी नोड इसमें है, ये सभी अप्लाई करेंगे, मतलब सेटिस्फाई करेंगे मैक्सिप का प्रॉपर्टी. ठीक है ना. तो अभी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये नहीं, ये नोड नहीं कर रहा है, ये नोड नहीं कर रहा है, ये नोड भी नहीं कर रहा है. ठीक है ना. तो इसको मैक्सिप
पूरा मैक्सिप को कन्वर्ट करने के लिए बिल्ड मैक्सिप मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर हिपिफाई मेथड हम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, सभी नॉन लीफ नोड को अप्लाई करेंगे हिपिफाई, ठीक है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट नॉन लीफ नोड हम स्टार्ट करें। पहले इस यहाँ पर अप्लाई करेंगे हिपिफाई, उसके बाद वाला यहाँ पर अप्लाई करेंगे हिपिफाई, उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे हिपिफाई, ठीक है ना। जब ये कंप्लीट लास्ट हो जाएगा यहीं पर करने के बाद, ठीक है ना। तो ये वाला जो है यहीं से शुरू करेंगे। तो ये कौन सा है, लास्ट नॉन लीफ नोड, ठीक है ना। अच्छा, ये लास्ट नॉन लीफ नोड का इंडेक्स कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला है n/2 - 1। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री। अच्छा, इस ट्री में कितना नोड्स है बताओ, इस ट्री में कितना नोड्स है सर 7। 7 7। So to find the index of the last non-leaf node is, so you have here n is 7, okay, total number of node is 7, that means n is 7, n is the total number of elements, okay. So here index of the last non-leaf node कैसे निकालोगे ना, n/2 - 1। तो n/2 कितना हो गया बताओ, सर 3.5। 3.5, उसका फ्लोर लेना है, ठीक है, -1। 3.5 का फ्लोर कितना, 3 - 1 कितना हो गया, सर 2। 2। सो 2 इज द इंडेक्स ऑफ द लास्ट नॉन लीफ नोड, तो ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू करना है, ठीक है ना। तो i का वैल्यू यहीं से शुरू करना है, फॉर i इक्वल्स टू ये वाला n/2 - 1, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है ना। तो इसको हिपिफाई यहाँ पर अप्लाई करना है, हिपिफाई मेथड भी यहाँ पर अप्लाई करो। तो हिपिफाई यहाँ अप्लाई करोगे मतलब क्या, इसका वैल्यू को इसके चाइल्ड नोड से कंपेयर करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इसको इसके साथ भी कंपेयर करना है, ठीक है ना। जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, ठीक है ना, उसको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से सबसे मतलब ज़्यादा कौन है, 9 10 में से। अभी हम इसमें इस नोड में हिपिफाई अप्लाई करेंगे। हिपिफाई अप्लाई करेंगे मतलब क्या, हिपिफाई अप्लाई करने के बाद यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। इसके चाइल्ड नोड जो हैं, इसके चाइल्ड नोड इनमें से जो भी लार्जेस्ट होगा वो वैल्यू यहाँ उसके साथ ये स्वैप करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा है, 10। 10 लार्जेस्ट है। तो 10 वाला इधर आएगा, इस यहाँ पर 10 आएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको स्वैप करना है, वही तो करते हैं ना हिपिफाई में, ठीक है। हिपिफाई मतलब वही करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू को इधर लाना है, ठीक है। तो अब यहाँ हिपिफाई कर लिए, अब 10 इधर आ जाएगा, देखो 10 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ये नोड खत्म हो गया, इस नोड का काम खत्म हो गया, इस नोड को हिपिफाई कर लिया। अभी आई का वैल्यू माइनस करेंगे, ठीक है ना। आई का वैल्यू 2 था, 2 से शुरू किए थे, अभी आई माइनस आई इक्वल्स टू i-1 करेंगे, इधर आगे, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से अप्लाई करो हिपिफाई। अभी देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये नोड जो मैक्सिप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये वाला ये नोड कर रहा है, ये नोड मैक्सिप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं सर। नहीं कर रहा है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पर फिर से हिपिफाई अप्लाई करो, मतलब इन दोनों में से जो लार्जेस्ट है वो इधर आएगा। तो इन दोनों में से 8 लार्जेस्ट है, तो 4 के साथ उसको यहाँ पर स्वैप किया, 8 इधर आ गया, ठीक है ना। अभी फिर से क्या करेंगे, आई का वैल्यू फिर से डिक्रीमेंट करेंगे, i2 था यहाँ i1 हो गया, फिर से आई का वैल्यू और एक डिक्रीमेंट होगा, कितना होगा, 0 हो जाएगा, इधर आ जाओ इंडेक्स यहाँ 0। और फिर इस नोड को हिपिफाई अप्लाई करो। तो इस नोड में भी देखो यहाँ पर 4 10 हो गया, ये हो गया, ठीक है ना, 8 है 10 है। अभी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, या 10 है, सो 1 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, ओके, दिस इज नॉट satisfying maxi property. So now in between this 8 and 10, 10 is the largest, so we'll swap this 10 with this, okay, so it is swapped now, after swapping we'll get this, okay। तो अभी 10 इधर आ गया, लेकिन 10 इधर आने के बाद देखो 1 इधर आया, ठीक है ना। अभी 10 इधर जाएगा, 1 इधर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 55 अप्लाई किया। लेकिन 1 इधर आने के बाद अभी ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये वाला ये नोड देखो, नहीं सर। नहीं कर रहा है, तो फिर से यहाँ पर अप्लाई करो, ठीक है ना। 1 नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पर फिर से ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो 1 जिधर गया वहाँ फिर से उसको फिर से 55 अप्लाई करो। तो यहाँ पर 1 को 55 अप्लाई करने से क्या होगा बताओ, इसके जो चाइल्ड हैं इनमें से जो लार्जेस्ट है वो इधर आ जाएगा, ये 9 के साथ स्वैप होगा, स्वैप हो गया।
स्वैप होने के बाद 9 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ठीक है ना। तो अभी देखो ये पूरा मैक्स हीप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, समझ में आया। यस सर। तो ये बिल्ड मैक्स हीप करने के लिए हमें ये हिपिफाई मेथड को अप्लाई करना है। कहाँ से अप्लाई करना है? लास्ट नॉन लीफ नोड से अप्लाई करके रूट नोड तक आना है, ठीक है ना। तो लूप चलाएंगे इसको, इसका अगर एल्गोरिथम लिखोगे, सी फंक्शन लिखोगे, तो इसमें एक लूप चलाना है। लूप कहाँ से शुरू करोगे? लास्ट नॉन लीफ नोड से। लास्ट नॉन लीफ नोड का इंडेक्स है कितना? n/2 - 1। सो फॉर आई इक्वल्स टू n/2 - 1 डाउन टू कहाँ तक जाना है? किधर जाना है? आई का वैल्यू कहाँ तक जाना है? सर n/2 - 1। n/2 - 1 तो ये वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जाएंगे कहाँ तक? रूट नोड तक जाएंगे ना, हिपिफाई करते करते। यस सर। हाँ, तो रूट नोड का इंडेक्स कितना है? 0। 0। तो 0 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखो इसका है सी कोड टू बिल्ड ए मैक्स हीप, ठीक है ना। फॉर आई इक्वल्स टू n/2 - 1 आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। रूट तक जाएंगे ना, रूट का इंडेक्स कितना है? 0 है, तो 0 तक जाएंगे। आई माइनस माइनस हिपिफाई ARR/NI, ठीक है ना। हिपिफाई कर रहे हैं आरे को, जो आरे है ना, आरे मतलब क्या? ये वाला, ये ट्री को आरे में रिप्रेजेंट करते हैं ना, ठीक है ना। इसको पास कर रहे हैं और इसका साइज भी पास कर रहे हैं। साइज कितना है? एन यहाँ में, ठीक है ना। और आई क्या है? इंडेक्स, ये जो इंडेक्स वैल्यू, ठीक है ना, इसको पास कर रहे हैं। तो हिपिफाई कर रहे हैं अभी कितना? आई इक्वल्स n/2 - 1 से लेकर 0 तक सारे नोड को हिपिफाई कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं? हेलो। यस सर। सारे नोड को हिपिफाई कर रहे हैं। और हिपिफाई का मेथड यहाँ पर इधर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हिपिफाई मेथड पिछले स्लाइड में, ओके। और यहाँ पर देखो ये वाला एक है, देखो हिपिफाई ARR/n लार्जेस्ट, फिर से यहाँ पर कॉल कर रहे हैं क्योंकि वो जो नीचे जा रहा था ना वन, ये वाला दे दो हिपिफाई मेथड यहाँ पर देखो। और इसमें इंट लार्जेस्ट आई कर लिए, उसका लेफ्ट सेप्टर निकाल रहे हैं। इंट लेफ्ट इक्वल्स टू 2i+1, इंट राइट इक्वल्स टू i+2, है कि नहीं। इसका अगर 2 है, इसका लेफ्ट कितना होगा? 2i+1, ये वाला 2i+2, ये ठीक है ना, वैसे ही कर रहे हैं। तो लार्जेस्ट इक्वल्स टू आई, लेफ्ट इक्वल्स टू 2i+1, राइट इक्वल्स टू i+2, और कंपेयर कर रहे हैं। इफ लेफ्ट लेस देन n एंड ARR लेफ्ट ग्रेटर देन ARR लार्जेस्ट, देन लार्जेस्ट इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है ना। हम एक्चुअली कंपेयर करें दोनों में से कौन सा बड़ा है, लेफ्ट चाइल्ड बड़ा है या राइट चाइल्ड बड़ा है। जो बड़ा है उसको रूट के साथ स्वैप कर रहे हैं आप, ठीक है ना। स्वैप करने के बाद वो फिर जो स्वैप होकर नीचे जो गया वैल्यू, ठीक है ना, अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे, फिर से वहाँ पर उसको हिपिफाई कॉल करना है। जैसे हम यहाँ किए थे ना, 1 देखो 1 नीचे आ गया, आने के बाद ये हिपिफाई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, फिर से यहाँ पर इस नोड में कॉल किए थे हिपिफाई, इसलिए यहाँ पर फिर से कॉल करना है हिपिफाई ARR/n लार्जेस्ट, ठीक है। ओके, समझ में आया? यस सर। So this is your build maxif method, and this is the C code for build a maxif. And the time complexity for build maxif is big of log n. Okay. Now discuss insert element into the heap. तो insert कैसे करोगे heap में, ठीक है। If you want to insert a new element into the heap, then how you will insert that? So the steps are these are the steps. Insert the new element at the end of the tree. Okay. ट्री का जो एंड है, ठीक है ना, वहां पर इंडेक्स को वहां पर ये करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये वाला दिस इज ए ट्री, ओके। सो इसमें क्या करना है कि एंड में इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद देन हिपिफाई द ट्री, ट्री को हिपिफाई करना है, ठीक है ना, टू मेंटेन द मैक्सिम प्रॉपर्टी, ओके। अभी देखो एग्जांपल एक देखते हैं। दिस इज ए बाइनरी ट्री एंड वी वांट टू इंसर्ट दिस 7 इनटू द फॉलोइंग हीप, ओके। So this is the heap and we want to insert 7 here, okay। तो कैसे इंसर्ट करोगे? इसको इंसर्ट करोगे कैसे? रूट नोड का वैल्यू सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। इसके बाद मतलब रूट नोड का वैल्यू उसके चाइल्ड से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो अभी देखो ये रूट नोड हो गया, ये 7 है, 7 को इधर लाओ, कंपेयर करो 9 से। अगर ये 9 से छोटा होता तो
7. Yes. So this, no, वैसा नहीं होगा. Okay. So we have to, actually, we should not be confused with BHD, okay? Because we have to insert this new element at the end of this array, okay? So during insertion into the heap, we have to insert the new element at the end of the heap, okay? So end of the heap means at which index we'll insert, tell me? We'll insert at the end, then we'll apply heapify, okay, to the tree. तो इसका एंड कितना है बताओ? एंड का इंडेक्स 6 में होगा. 6 में होगा, तो यहाँ पर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर होगा, ठीक है. बीएसटी के इंसर्शन के साथ कंफ्यूजन मत होना, ठीक है. इसको इंसर्ट करना है पूरा एंड में, तो इन मतलब यहाँ 6, तो यहाँ पर इंसर्ट होगा 7, ठीक है. और यहाँ इंसर्ट करने के बाद क्या करना है? पूरा का पूरा ट्री को हिपिफाई करना है, पूरा का पूरा ट्री को हिपिफाई करना है, ठीक है ना. देखो इंसर्ट कर लिया 7, तो अभी पूरा का पूरा ट्री को हिपिफाई करेंगे. मतलब क्या, यहाँ से शुरू करेंगे. देखो ये मैक्सिव है, सेटिस्फाई कर रहा है क्या ये वाला? कर रहा है? नहीं सर. नहीं, तो क्या करना है? हिपिफाई करेंगे इसको, इस नोड को. तो हिपिफाई करने के बाद क्या होगा? बोलो. सर 7 ऊपर चला जाएगा. 7 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा. देखो आ गया 7 ऊपर, 5 नीचे. अब इस इधर आ जाओ, 1 मैंने माइनस करके इस इंडेक्स से इधर आ जाओ. नॉन लीफ नोड जो है ना, यहाँ से शुरू किए थे, अब इधर आ गए. ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो यस सर. कर रहा है, ठीक है. अभी इधर आ जाओ, ये कर रहा है, यस सर. कर रहा है, तो ये हो गया, ठीक है ना. सो लास्ट में इंसर्ट करना है और पूरा का ट्री को, पूरा का पूरा ट्री को हिपिफाई अप्लाई करना है, ठीक है ना. देन डिलीट एलिमेंट फ्रॉम द हीप. तो डिलीट कैसे करेंगे? इंसर्ट हमने डिस्कस किया, अभी डिलीट ऑपरेशन डिस्कस करेंगे. सो डिलीट में क्या होता है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द एलिमेंट टू बी डिलीटेड. कौन से एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो उसको पहले सिलेक्ट करना है. देन स्वैप इट विद द लास्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट के साथ उसको स्वैप करना है. देन रिमूव द लास्ट एलिमेंट, ओके, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करना है. उसके बाद हिपिफाई द ट्री, पूरा का पूरा ट्री को फिर से हिपिफाई करना है, ठीक है ना. एग्जाम्पल एक देखते हैं. सो सिलेक्ट द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, ओके. कोई सा भी नोड को डिलीट कर सकते हो. सपोज वी वांट टू डिलीट दिस नोड, ओके, दिस नोड, दिस वन, 3 value we want to delete, okay, and this 3 value is present at which index? At index 1, okay. So if you want to delete this, then what to do? You have to swap this with the last element. So which one is the last element? Tell me. कौन सा है लास्ट एलिमेंट? सर 5. 5 का इंडेक्स कितना है? 6. ये वाला है कि नहीं? ओके, हेलो. यस सर. ओके. अच्छा, अगर इसको मैं आरए में रिप्रेजेंट करूं, इसको मैं कैसे लिखूं? आरए इज एआरआर. सपोज एआरआर इज द आरए, ठीक है ना. ये 3 को कैसे एक्सेस करूं बताओ? एलिमेंट 3 ये वाला, सर एरर ऑफ 1. एआरआर ऑफ 1, गुड. और ये वाला 5 को? सर एरर ऑफ 6. एआरआर ऑफ 6, गुड, वेरी गुड. तो दिस टू विल बी स्वैप. मींस स्वैप, एक फंक्शन बना लेना स्वैप, और उसको कॉल करना है और ये दोनों एलिमेंट को पास करना है, ठीक है ना. तो स्वैप फंक्शन में किसको पास करना है? ARR1 ARR6 को पास करने से वो स्वैप करके दे देगा. मतलब 3 आ जाएगा इधर, 5 आ जाएगा इधर, ठीक है ना. तो पहला स्टेप में क्या किया? पहले सिलेक्ट करना है, यहाँ सिलेक्ट के इसको, इसी को डिलीट करना है, तो इसको सिलेक्ट किए. उसका सिलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे? स्वैप करेंगे लास्ट एलिमेंट के साथ. देखो स्वैप कर लिया, ठीक है ना. स्वैप कर लिया, यहाँ पर 5 इधर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया, स्वैप हो गया, ठीक है ना. स्वैप करने के बाद क्या करना है? ये जो लास्ट इंडेक्स है ना, लास्ट इंडेक्स वाला जो एलिमेंट है ये 3, इसको डिलीट करना है यहाँ से, ठीक है ना. इसको यहाँ से डिलीट करना है. डिलीट करने के बाद और जो बचा है ये, इसको हिपिफाई अप्लाई करेंगे इस ट्री, ठीक है ना. देखो ये डिलीट करना है इसको. देखें यहाँ पर कैसे डिलीट कर रहे हैं. 3 को डिलीट कर रहे हैं यहाँ पर. इसको डिलीट करने के बाद क्या करना है? ये पूरा का पूरा ट्री को हिपिफाई अप्लाई करना है. मतलब यहाँ से शुरू करना है, इस नोड से हिपिफाई, जो लास्ट नॉन लीफ नोड है, यहाँ से हिपिफाई स्टार्ट करके पूरा रूट तक जाना है. मतलब पूरा ट्री को हिपिफाई करना है,
टू मेक इट ए मैक्सी, ठीक है ना, मतलब बिल्ड मैक्सी पे अप्लाई करना है, ठीक है, समझ में आया। तो डिलीट ऐसे होता है, ओके। यहाँ पर देखो रिमूव द लास्ट एलिमेंट कर लिए, करने के बाद हिपिफाई द ट्री, ट्री को हिपिफाई कर रहे हैं, ओके। अच्छा, इसको डिलीट करने के बाद देखो ये भी मैक्सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है कि ये वाला, ये नोड 7 Yes, sir. कर रहा है, ये वाला कर रहा है, ये वाला 5 Yes, sir. कर रहा है, इधर आ जाओ, ये वाला कर रहा है, Yes, sir. तो ऑलरेडी मैक्सी है, सो नो प्रॉब्लम, ओके। The next operation is extract max and extract min, okay. So extract max returns the node with the maximum value after removing it from the maxi, okay, and extract min returns the node with the minimum value after removing it from the min heap, okay. अच्छा, मैक्सिप में सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू कहाँ पे रहता है बताओ, मैक्सिप में Root node. रूट नोड, तो रूट नोड का वैल्यू रिटर्न करेगा और उसको रिमूव भी करेगा, डिलीट कर लेगा, ठीक है। वैसे ही मिन हीप में रहता है Sir, root node में. रूट नोड, तो ये क्या करेगा, मेन एक्सट्रैक्ट मीन क्या करेगा, रूट नोड का वैल्यू को रिटर्न करेगा और उसको डिलीट भी कर देगा ट्री से, ठीक है ना। और डिलीट सर कैसे अगर रूट को ही डिलीट कर देगा तो फिर सर और वो ट्री ही नहीं रहेगा. नहीं, डिलीट कैसे होता है मैंने बताया ना। अभी मान लो मैं इसको डिलीट करूंगा, मान लो ये 3 डिलीट नहीं करके मैं इसको डिलीट करूँ, 9 को डिलीट करूंगा, तो कैसे करूंगा बताओ। सेम प्रोसेस है, सिलेक्ट द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, देन लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करो, फिर हिपिफाई अप्लाई करो पूरा ट्री में। अगर मैं 9 को डिलीट करूंगा तो क्या होगा बताओ। 5 उसकी जगह आ जाएगा. हाँ, 5 इधर आ जाएगा और ये 9 को इधर डिलीट करना है, उसका क्या करना है, हिपिफाई अप्लाई करना है पूरा ट्री को, मतलब क्या, लास्ट नॉन लीफ नोड यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, हिपिफाई पूरा ट्री को हिपिफाई करना है, समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, ओके। नाउ applications of heap data structure. So there are several applications of heap data structure, and these are some of the applications. The first one is it is used for uh, it is used for implementing a priority queue, okay। priority queue हमने पढ़ा है, तो उसको implement करने के लिए यूज होता है ये तुम्हारा heap data structure. It is also used for implementing Dijkstra's algorithm, okay। Dijkstra's algorithm is one of the most common algorithm that is used in the networking, okay, for finding the shortest path. It is also used for implementing the heap sort, okay. So priority queue we have discussed, and this Dijkstra algorithm is not there in your syllabus, okay, and this heap sort is there, so we will discuss now heap sort, okay. So heap sort, we already completed quick sort and merge sort, okay, and this is another sort, heap sort, and here in heap sort we use the heap data structure, okay, and the heap sort also used to sort the elements in the array, okay, like your merge sort and quick sort. And the steps of sorting are this: first step is swap, second step is remove, third step is heapify, okay. So in this swap step, what to do? Remove the root element and put at the end of the array, okay, that is nth position, and put the last item of the tree, okay, at the root, okay. Then what to do? Then reduce the size of the heap by 1, okay. तो इसमें क्या कर रहे हैं, स्वैप में क्या करें, रूट को डिलीट करना है, ठीक है ना। रूट को डिलीट करोगे मतलब क्या, रूट को लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करना है और वहाँ उधर से डिलीट करना है, ठीक है ना, और फिर हिपिफाई अप्लाई करना है, वही यहाँ पर है। सो रूट को डिलीट करना है, उसके बाद आरे का हीप का साइज को एक रिड्यूस करना है, देन हिपिफाई अप्लाई करना है ट्री को पूरा, ठीक है ना। और ये प्रोसेस चलता जाएगा, ठीक है ना, until all the items of the list are sorted, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देखते हैं, देखो this is a tree, binary tree, okay, this is a heap, okay, this is a max heap, and we want to sort this. So now
if you want to represent this using array, okay, then tell me this one 12. If the name of array is ARR, then this 12 is represented as, tell me कैसे रिप्रेजेंट करोगे 12 को, बोलो। सर एरर ऑफ 0। एरर 0। 6 को सर एरर ऑफ 1। यस। 10 को एरर ऑफ 2। ओके, बिकॉज दिस इज द इंडेक्स। अरे का इंडेक्स यहाँ दिया है ना, 0 1 2 3 4 5 ऐसे है, ठीक है ना। दिस 12 इज एरर 0, 6 इज एरर 1, 10 इज एरर 2, 5 इज एरर 3, 1 इज एरर 4, 9 इज एरर 5। तो यहाँ है, ठीक है ना। देखो 0 इंडेक्स, all these are indexes and these are the array elements. Okay, now this is present here. Okay, is this sorted now? Tell me, is this array sorted? नो सर। No. Now we want to sort this array using heap sort. Okay, तो heap sort में क्या होता है, ये जो root element, अच्छा, this is a max heap, this is max heap or not? Tell me, is this a max heap or not? Tell me. यस सर। It is a max heap. Okay, so in heap sort what to do, just delete this element, root element को डिलीट करना है, ठीक है ना। डिलीट करना है मतलब क्या, इसको ये लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करना है, ठीक है ना। स्वैप करना है, स्वैप करना है, स्वैप करने के बाद इसको डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद क्या करना है, इसको लाके यहाँ पर इंसर्ट करना है, इस आरे के लास्ट पोजीशन में इंसर्ट करना है यहाँ पर, ठीक है ना। समझ गए? तो इसको यहाँ पर ये स्वैप करना है, समझ गए। ये आरे है ना, आरे है, ठीक है ना। तभी देखो आरे में क्या करना है, हम यहाँ से ये रूट एलिमेंट यहाँ पर है, इसको डिलीट करना है, मतलब रिमूव करना है। यहाँ से रिमूव करके इसको लास्ट में रखना है, और ये लास्ट का जो एलिमेंट इसको रूट में यहाँ पर ला के रखना है, ठीक है ना। रखने के बाद क्या करना है, इसको फिर से बिल्ड करना है, बिल्ड मैक्सिप करना है। अब ये जो 12 है ना, इसको रिमूव करके कहाँ पर रख रहे हैं, आरे के लास्ट पोजीशन में रख रहे हैं। देखो यहाँ पर रखना, रख लिया यहाँ पर, देखिए रूट से इसको हटाए, रिमूव किए। रिमूव करने के बाद ये जो आरे है ना, इस आरे में हम एक्चुअली क्या करेंगे, इसको असेंडिंग और ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो हर घड़ी क्या करना है, ये जो रूट एलिमेंट में क्या रहता है, इस हीप के रूट एलिमेंट वैल्यू इज द लार्जेस्ट वैल्यू, इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो यहाँ से रूट से वैल्यू एक एक करके लेना है, और इस आरे में लास्ट पोजीशन में इसको रखना है, ठीक है ना। जो मैक्स सबसे हाईएस्ट वैल्यू रहेगा वही तो रहेगा ना लास्ट में, अगर इसको सॉर्ट करोगे, है कि नहीं। तो रूट में सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसको लाके लास्ट में रखना है। देखो रख लिए, लास्ट में रखने के बाद ये एलिमेंट का वैल्यू रूट में ले लिए थे, तो लास्ट ये जो हाईएस्ट वैल्यू को यहाँ पर रख लिया। इसके बाद वाला जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, कौन सा वैल्यू रखेंगे, नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। अच्छा, इसमें से नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू कैसे मिलेगा, फिर से इसको हिपिफाई करोगे सारे नोड को, मतलब फिर से इसको बिल्ड मैक्सिप बनाओगे, ठीक है ना। इसको फिर से मैक्सिप बनाओगे, ठीक है। इसको 12 को यहाँ से हटाने के बाद, अभी तो इस हिप से हमने इसको हटा दिया, इस नोड को हटा दिया। अभी ये है तुम्हारा हिप। Okay, now is this a max heap? After deleting this 12 and swapping, tell me, is this a max heap? Tell me. No. So इसको max heap में कन्वर्ट करो। max heap में कन्वर्ट करने से क्या होगा, ये रूट नोड में कौन सा वैल्यू आएगा बताओ, यहाँ पे कौन सा आएगा, 10 आएगा सर। 10 आएगा। तो 10 आने के बाद फिर से क्या करना है, इस 10 को फिर से लास्ट जो बचा है लास्ट एलिमेंट उसके साथ स्वैप करना है। और ये जो 10 है इसको रिमूव करके कहाँ पर रखना है, फिर से ये यहाँ पर रखना है, 4 इंडेक्स में, इस आरे के 4 इंडेक्स में रखना है, ठीक है ना। ये देखो यहाँ रख रहे हैं, ये 10 को यहाँ पर ले लिए, ठीक। मैं बिल्ड मैक्सिप करने के बाद यहाँ 10 आ गया, ठीक है ना। हिपिफाई करने के बाद 10 आ गया। अब इस 10 को यहाँ से रिमूव करके देखो फिर कहाँ रखना है, इधर यहाँ पर इसमें रखना है, ठीक है ना। कैसे रखोगे, इस स्वैप करके इसको स्वैप करना है, जो लास्ट एलिमेंट है ना इसको डिलीट करना है। डिलीट कैसे करोगे, इसको लास्ट एलिमेंट से स्वैप करोगे, फिर इसको डिलीट करोगे, डिलीट कर कहाँ रखना है, ठीक है ना। तो वो देखो यहाँ पर हो गया, तो 10 इधर लेके आ गए, देखे 10 आ गया। 10 आने के बाद फिर जो इस हिप से इसको देखो 10 को डिलीट कर लिया। डिलीट करने के बाद क्या है, ये अभी इतना बचा है इस ट्री में,
ठीक है। फिर से क्या करना है, फिर से इसको बिल्ड मैक्सिप करना है, मतलब हिपिफाई अप्लाई करना है सारे नोड को। तो इसको हिपिफाई करने के बाद फिर से कौन सा यहाँ रूट में कौन सा आ जाएगा, कितना वैल्यू आएगा रूट में, 9 आएगा। 9 आएगा। ठीक है, तो इस 9 को फिर से यहाँ ले लो और फिर से 9 को डिलीट करके यहाँ पर इसके बाद वाले में रखो और फिर से इसको मैक्सी पे अप्लाई करो सारे नोड को। ठीक है ना, देखो यह हो गया, 9 को डिलीट करके यहाँ रख लिया, फिर से इसको हिपिफाई किए। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा आएगा यहाँ पर नेक्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू, कौन सा, 85 करने के बाद 6 आ जाएगा इधर। ठीक है ना, तो फिर 6 इधर आ जाएगा, देखो वहाँ से डिलीट करके इस सारे में रखना है। ठीक है ना, देखो 6 को रख लिया यहाँ पर। ठीक है, ऐसे करते करते पूरा जब तक सारा एलिमेंट को डिलीट नहीं कर देते इससे, इस हिप से वैसे करते जाओगे और एंड में क्या होगा, इस आरे में पूरा हम रख देंगे सारा एलिमेंट। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हीप से लार्जेस्ट वैल्यू को रिमूव करके इस आरे में लास्ट से इंसर्ट करते करते आ रहे हैं, इसको बोलते हैं हीप सॉर्ट। ठीक है ना, ये हो गया, देखो लास्ट तक ऐसे कर लिया। फाइनली वी गेट दिस, ये वाला 1 5 6 9 10 12, दिस इज हीप सॉर्ट। समझ में आया कि नहीं? हाँ सर मतलब जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगा उसको स्वैप करके लास्ट इंडेक्स में ले जाएंगे और हाँ फिर हाँ, उसको हिपिफाई अप्लाई डिलीट करेंगे कर सारे नोड। देंगे और हाँ उसके बाद हाँ, फिर हिपिफाई करके वही बस बस स्टेप रिपीट बस, होता यस जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस। ओके, 3 यस स्टेप है, सर। स्वैप रिमूव एंड हिपिफाई। ओके, 3 स्टेप्स, स्वैप रिमूव एंड हिपिफाई। ओके ओके, नाउ सी फंक्शन फॉर हीप सॉर्ट। ओके, सो सी फंक्शन में क्या आता है, वॉइड हीप सॉर्ट। ठीक है ना, हीप सॉर्ट में हम आरे पास करें, इंट एरर इंट एन, एन क्या है, साइज ऑफ द आरे। ओके, अच्छा, फॉर इंट आई इक्वल्स टू एन बाई 2 माइनस 1 आई ग्रेटर देन 0 आई माइनस 1। पहले क्या करना है हमें, अगर आरे दिया है पहले क्या करेंगे, मैंने तुम्हें ट्री दिया है, ट्री का एक रिप्रेजेंटेशन दिया है, वो मैक्सिप हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो पहला स्टेप क्या करना है, उसको मैक्सिप में सर कन्वर्ट करो हिपिफाई। पहले। हाँ, हेलो, सर हिपिफाई करेंगे। हाँ, पहले हिपिफाई करोगे मतलब बिल्ड मैक्सिप करोगे, बिल्ड मैक्सिप में हिपिफाई करते हैं ना। तो देखो हिपिफाई किए, हिपिफाई पूरा जो लास्ट नॉन लीफ नोड से स्टार्ट करके रूट नोड तक हिपिफाई किया था, हिपिफाई एरर। तो हिपिफाई करने के बाद हमें मैक्सिप मिल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, तो पहले बिल्ड मैक्सिप कर रहे हैं, बिल्ड मैक्सिप करने से मैक्सिप मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो हिपिफाई अप्लाई किए सारे नोड को, हमें मिल जाएगा, मैक्सिप मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, हिप शॉट अप्लाई करेंगे। हिप शॉट में क्या करते हैं, लास्ट नोड के साथ स्वैप करते हैं किसको, रूट नोड को। उसके बाद उसी रूट नोड को डिलीट कर लेते हैं, है कि नहीं। देखो आई इक्वल्स टू एन माइनस वन, आई ग्रेटर देन इक्वल टू आई माइनस वन। ओके, एन माइनस वन का मतलब क्या है, लास्ट नोड का इंडेक्स। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, देखो स्वैप कर रहे हैं, देखो स्वैप कर रहे हैं किसके साथ, एरर 0 एरर आई, और यहाँ पर एड्रेस पास कर रहे हैं, मतलब वहीं पे वो स्वैप कर लेगा। ठीक है ना, आरए में ही वैसे ही स्वैप कर लेगा, एड्रेस पास करें पॉइंटर यूज करके। समझ में है, लास्ट एलिमेंट के साथ स्वैप किए, फिर इसको डिलीट करना है और फिर क्या करें, हिपिफाई अप्लाई कर रहे हैं, देखो हिपिफाई एरर आई 0। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर हम जो हिपिफाई अप्लाई कर रहे हैं, देखो हिपिफाई में आई का वैल्यू क्या दे रहे हैं, 0, मतलब रूट नोड को हिपिफाई कर रहे हैं। तो अगर रूट नोड को हिपिफाई करोगे मतलब है कि पूरा ट्री को हिपिफाई तुम कर रहे हो। समझ में आ रहा है, इसलिए रूट नोड को हिपिफाई कर देने से, क्योंकि रूट में ही तो हम जो स्वैप किए थे, स्वैप करने का तो वही रूट नोड में ही, मतलब हिप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो उसी को करना है हिपिफाई, उसी को करने से पूरा का पूरा ट्री हिपिफाई हो जाएगा। ठीक है, समझ में है। और ये हिपिफाई का मेथड ये इधर है। ठीक है, और स्वैप का इधर है। ठीक है, स्वैप फंक्शन, क्योंकि एड्रेस पास करें, यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए उसको रखने के लिए। समझ में आया? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, now the time complexity for heap sort is, best case time complexity is big of n log n, worst case is big of n log n, and average case also big of n log n. Okay,
And this is all about your heap sort. Okay. With this, your heap sort is complete. Any questions, students?